Okay, student. Now, today, after the Faraday's experimental observation, we'll discuss the Faraday's laws of electromagnetic induction. We all know that the flux will change. Then an induced EMF is produced if coil is in the form of a closed loop and induced current is produced. So the phenomena behind this Faraday states first law: whenever flux linked with a closed coil, then an induced EMF is produced. If coil is a closed loop, an induced current is produced through it. Let us see the first law. Whenever magnetic flux change linked with a coil, then an induced EMF is produced if a coil is a closed loop, then a current flows through it. So first part of this law: whenever magnetic flux change linked with a coil, then an induced EMF is produced if a coil is a closed loop, then a current flows through it. Here in the diagram you can demonstrate it. Here this is a coil connected with a galvanometer G and a magnet here. This is a north pole and this is a south pole. Here let us see in the diagram. Here these are the magnetic field lines. Passes through it like in this form. If the magnet is moved through the coil, then flux change linked with a coil, then an induced EMF is produced, and galvanometer shows deflection. It means the galvanometer shows deflection only when the current passes through the coil. If it is possible only when the relative motion between the coil and the magnet takes place here, as it is shown in the diagram here. So let us see this. So this is the first part of
the first law. Now similarly you can state the second part of this law. Second part, this is the second part of this law here. Whenever there is relative motion between a coil and magnet, relative motion between a coil and magnet, and induced EMF is produced in a coil if it is a closed loop, then an induced current then an induced current flows through it. So this is the first law. Here there were two parts here. The conclusion is that here if the magnetic flux change linked with a coil, anyhow we will know by changing the magnetic field, the magnetic flux change linked with a coil, changing the area of the closed loop or a coil, magnetic flux change linked with a coil, or by orientation of the coil about axis, magnetic flux change linked with a coil and induced EMF is produced. It means if anyhow under these changes magnetic flux change linked with a coil. So this law states one way is also here. Whenever there is relative motion between a coil and magnet, between coil and a magnet, an induced EMF is produced in coil. If it is a closed loop, then an induced current flows through it. So let us, you can note these two parts. तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम कॉइल और मैग्नेट के बीच, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो जब तक कोई कॉज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज का कोई रीजन नहीं होगा, तब तक ये जादू टोने वाला कोई करंट प्रोड्यूस्ड भी नहीं होगा। ये अपैरेंट करंट आप फ्लो भी नहीं करेगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हुआ।
इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करे तब, या तो एरिया को डिक्रीज या इंक्रीज करें तब, या ओरिएंटेशन कॉइल का एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो तब, या मैग्नेट कॉइल के एग्जाम्पल में मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन हो तब। अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया कि ये चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कॉइल क्लोज्ड लूप के फॉर्म में है तो करंट प्रोड्यूस होगी। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये एक तरह से इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, देखा भी। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है हमारे सामने कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्लक्स। क्वेश्चन ये है, मीन्स अब जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ ईएमआई का, जिसको हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ कहते हैं, दिस लॉ स्टेट्स टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। ये सेकेंड लॉ है। तो सेकेंड लॉ एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सेकेंड लॉ states for the qualitative analysis. Qualitative it means find the magnitude of induced EMF due to change in flux with respect to time. ये सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड लॉ है किसका? फैराडे का। तो हियर Faraday second law, let us see Faraday second law, ठीक है? This Faraday second law, the magnitude of, let us see the magnitude of, this law used to express the qualitative analysis about the induced EMF. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with coil. ये दिस इज द फैराडे सेकेंड। तो बाय दिस लॉ वी विल discuss the qualitative analysis. Here mathematically it can be expressed the magnitude of induced EMF is directly proportional to modulus. Why does we modulus sign? To get the magnitude of the induced EMF, or
it can be write K d phi upon dt. Here K practically is equal to 1. Practically K is equal to, means if time varying magnetic flux, here time varying मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा अब यहां से actually this law expressed as E is equal to minus d phi upon dt. The negative sign here, negative sign, it means the cause of change in magnetic flux, induced EMF always changes the opposes the change in magnetic flux. What is the negative sign refer here? Induced EMF opposes the cause of change in magnetic flux, means in previous topic हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करेगा, क्योंकि दिस इज अ फर्स्ट काज, या एरिया के इंक्रीज होने का अपोज करेगा या डिक्रीज होने का अपोज करेगा या क्वाइल का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन का अपोज करेगा या क्वाइल और मैग्नेट के केस में क्वाइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा. तो हियर नेगेटिव साइन signify okay. Further you can proceed it if coil have n turns. अगर इस कॉइल में n टर्न है तो this can be expressed E is equal to minus n d phi upon dt, or it can be written as E is equal to minus d by dt of n phi. यहां पर n phi signify the another parameter, another factor. This n phi is called flux linkage. Flux
linkage. लेकिन एक चीज हम यहां पर ध्यान रखें कि एक्चुअल फॉर्म इस लॉ का तो यही है कि माइनस ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, लेकिन जब भी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, जब भी हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, तो इन दैट केस विल टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, टेकिंग द मॉडुलस and get the magnitude. Here, if we'll find the magnitude of the induced EMF, then retain it E is equal to n d phi upon dt. यहाँ पर इसका मॉडुलस आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। और फर्दर if resistance of coil is capital R, यहां पर हमने रिलेट कर लिया। कॉइल तो कंडक्टिंग ही है, तो मीन्स इट हैज रेजिस्टेंस आल्सो। और अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर यहां पर हम लेट कर ले, आर मान ले, तो फिर ओम्स लॉ से इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर, टू पुट द वैल्यू ऑफ induced EMF and get it n upon R d phi upon dt. तो this is the value of induced current. कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से हम इस क्वालिटेटिव एनालिसिस के द्वारा गिवन टाइम में कितना फ्लक्स चेंज है, इसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करके कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते। और अगर उस लूप में नंबर ऑफ टर्न एक से ज्यादा है, सपोज if coil have n turns, suppose here if coil have n turns, then induced EMF is taken minus n d phi upon dt. Now if flux change d phi or flux change linked with coil takes place in a finite interval delta t, then average EMF induced is written n delta phi upon delta t, and corresponding average induced current IAV is equal to n upon R delta phi upon delta t. Let us note this. Okay student, now let us start new topic, very interesting. कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे कि अगर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू काज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू काज ऑफ चेंज इन एरिया या ड्यू टू काज ऑफ चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल या in case of magnet and the coil due to cause of relative motion.
तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये भी दिमाग में आता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डायरेक्शन क्या होगी उसकी। जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यही स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आर करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आर करंट। और इसके लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? लेंज लॉ। लेंज लॉ की हेल्प से अगर हम लेंज लॉ को देखें तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF R current is always such that it opposes the cause producing it। क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग यहां पर पहुंच गए। क्या क्या कॉज हमने बताया, किस किस के कारण से ये फ्लक्स चेंज हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन यही है हमारा यहां पर कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आर करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस कॉज प्रोड्यूसिंग इट। क्या क्या कॉज हमने बताया फ्लक्स चेंज होने का? इसके पहले हमने यही बताया था कि फ्लक्स चेंज होगा या फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो। फ्लक्स चेंज होगा, एरिया डिक्रीज हो, एरिया इंक्रीज हो। फ्लक्स चेंज होगा, ओरिएंटेशन चेंज हो। फ्लक्स चेंज होगा यदि कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो। डिफरेंट कॉज है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें, इस चीज को आइडेंटिफाई करें, स्पेसिफाई करें कि अगर इनमें से कोई भी एक कॉज है तो देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए। लेट अस सी दिस। ये तो आपको पता ही है ना, इस डेमोन्स्ट्रेशन में जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है सबको पता है, आप जानते भी हैं कि देयर आर डिफरेंट 3 वेज मैग्नेटिक फील्ड को डेमोन्स्ट्रेट करने का, जिनमें से एक क्या है, ये नॉर्मली इनवर्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एरिया A is to be kept or placed। अब आइए हम लोग पहले फर्स्ट कॉज को स्टडी करते हैं। हमने क्या कहा कि जो पहला कॉज है हमारा वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, वेरिंग। और वो वेरिंग में क्या डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग ले लिया, एक अपवर्ड एरो का यूज करते हैं फॉर सिंबल इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और ये तो हम लोग को मालूम ही है ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, सिंस phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v।
इट मीन्स यहाँ पर फ्लक्स चेंज विल बी टेक्स प्लेस। अब वो फ्लक्स चेंज कैसा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए इंक्रीज होगा, इंक्रीज। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो आइए फिनोमिना ऑफ EMI पर, कि फ्लक्स चेंज linked with a coil to be changed and induced EMF or current to be produced। इसका मतलब यहां पर induced EMF is produced। और फिर हम लोग एक और आंसर पर पहुंच गए। क्या? अगर हम फैराडे लॉ के फर्स्ट लॉ के पहले पार्ट को देखें कि अगर वो कॉइल क्या है, क्लोज्ड फॉर्म में है, तो इंड्यूस करंट भी फ्लो होगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ तो क्या इसकी क्लॉक होगी? आइए हम लोग इस रिजल्ट पे, कॉज यहां क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। कहने का मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड जो भी इंक्रीज हो रहा है इसी को हमें डिक्रीज करना है। कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? उस वेक्टर प्रॉपर्टी पर हम आ जाए, क्योंकि ये हमें मालूम है कि वेक्टर लॉ हमें पहले ही इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स किसी भी प्लेन में इस वे में एक्ट कर रहे हों कि डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे में रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा? उसका डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। तो अगर इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये कॉज, मतलब ये जो इंड्यूस्ड EMF या करंट है वो अपोज करेगा, और अपोज के लिए इसका मतलब जो अपेरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा गेट्स रिड्यूसेस का मतलब क्या हुआ? यही ना हुआ कि जो अपेरेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड। कार्क रूल पर जाते हैं हम लोग। कार्क रूल में हम लोगों ने ये पहले ही स्टडी किया है कि इफ एंटी क्लॉकवाइज करंट इज फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड कॉइल, देन at the upper face of the coil is a north and the lower face is a south pole. Now to converse of this, if at the upper face of the coil is a north and at the lower face of the coil is a south, then the clock of the current in that coil is anti-clockwise. आसानी से हम लोगों ने अब देखिए, लेकिन ये है इन सभी के लिए हमें क्या, उस प्रीवियस नॉलेज की बहुत ज़रूरत होगी। वो चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। अगर वो पता रहेंगी तो उन सब चीज़ों की हेल्प से आप यहाँ पर, और दूसरी एक चीज़, एक डायरेक्ट, अगर आप सोचें डायरेक्ट, लेट अस सी द सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल इन सिमिलर वे। द डिफरेंस हियर, the given magnetic field is normally inward, and in this case the magnetic field is the normally outward. Now here to place a rectangular coil, अब firstly, now to go, what is the cost to change the magnetic flux linked with the coil? In this case also we assume magnetic field be increasing. Again here magnetic field be increasing. फिर उस लॉ ऑफ EMI पर
if magnetic field is increasing or varying, then magnetic flux linked with the coil will change phi v directly proportional to v से इंक्रीज। और अगर ये चेंज हो रहा है मीन्स यहां पर ये भी इंक्रीज होगा। तो लॉ ऑफ ईएमआई से induced EMF is produced, EMF is produced, or induced EMF is produced, then induced current is flow, induced current is flow through the coil if this is a closed loop. Here apparent magnetic field get reduces means if the increasing magnetic field is normally outward, then apparent magnetic field is normally inward. Using the Kark rule, at the upper face the polarity is a south pole and at lower face polarity is a north pole. In this case the current is in clockwise. Okay student, now let us discuss other examples in the next part.